And today we want to continue looking at those seriously evil things that are destroying our inner life, which sometimes we may not even be aware of. हम उन गंभीर बुरी चीजों को देखना जारी रखेंगे जो हमारे आंतरिक जीवन को नष्ट कर रही है, जिनके बारे में कभी-कभी हमें पता भी नहीं चल पाता है. The Word of God is like a X-ray machine or a scanning machine that shows us what our inside is really like. परमेश्वर का वचन एक एक्सरे मशीन या स्कैनिंग मशीन की तरह है जो हमें दिखाता है कि हमारा आंतरिक जीवन वास्तव में कैसा है. We want to turn today to Mark's Gospel chapter 4 and see there how when Jesus was traveling in a boat across the lake with his disciples, we read in verse 37, there was a fierce gale, a storm, and the waves were breaking into the boat and the boat was filling up and they were going to sink and the disciples were scared. आइए आज हम मरकुस 4:37 की ओर मुड़ते हैं, जहां हम पढ़ते हैं कि एक बार जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ झील के उस पार जाने के लिए एक नाव में यात्रा कर रहे थे, तो भयंकर तूफान आ रहा था और लहरें नाव से टकरा रही थी. नाव पानी से भरने लगी थी और वे डूबने वाले थे और चेले डर गए थे. And Jesus was asleep in the boat. They woke him up and Jesus rebuked the wind and the wind became still. They were afraid they'd perish. प्रभु यीशु नाव में सो रहे थे. शिष्यों ने उन्हें जगाया और प्रभु यीशु ने हवा को डांटा और हवा शांत हो गई. शिष्यों को डर था कि वे नष्ट हो जाएंगे. They asked him, "Teacher, don't you care that we are perishing?" उन्होंने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या आपको परवाह नहीं है कि हम नष्ट हो रहे हैं? And he said to them, "Why are you so timid? How is it that you have no faith?" और उन्होंने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? ऐसा क्यों है कि तुम्हें विश्वास नहीं है? When we look at Jesus rebuking his disciples, जब भी हम प्रभु यीशु को अपने शिष्यों को डांटते हुए देखते हैं, we find him reserving his strongest rebukes for one sin. हम पाते हैं कि वह अपने सबसे कड़ी डांट एक पाप के लिए बचा कर रख रहे थे, And that was unbelief. और वह अविश्वास था. We've been looking at the sins which Jesus hated the most. हम उन पापों को देख रहे हैं जिनसे प्रभु यीशु को सबसे अधिक नफरत थी. Sins which are not considered sins by most people in the world. पाप जिन्हें दुनिया में अधिकांश लोग पाप नहीं मानते हैं. Hypocrisy, पाखंड, pride, घमंड, selfishness, स्वार्थ, hatred, घृणा, and fifthly, unbelief. अब अविश्वास. Now, unbelief is definitely not considered a sin by anybody in the world. अब अविश्वास को दुनिया में कोई भी निश्चित रूप से पाप नहीं मानता. The sad thing is, दुख की बात यह है कि I think 99% of believers, born again believers, also do not consider unbelief as a sin. They consider it as a weakness. मुझे लगता है कि 99% विश्वासी, नया जन्म पाए हुए विश्वासी भी अविश्वास को पाप नहीं मानते हैं. वे इसे कमजोरी मानते हैं. They think of it as I don't have enough faith, brother. वे इसे ऐसे सोचते हैं, हाँ, मुझ में इतना विश्वास नहीं है भाई. It's a weakness, they think. It's like saying, well, I'm not able to lift so many kilos. I'm weak. My right hand is weak. वे इसे कमजोरी मानते हैं. जैसे मैं इतने किलो वजन उठाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरा दाहिना हाथ कमजोर है. Now, if it were a weakness, it's not serious. अब अगर यह कमजोरी होती तो यह इतनी गंभीर बात नहीं होती. It's serious because it's a sin. यह गंभीर है क्योंकि यह एक पाप है. Jesus rebuked it as a sin. प्रभु यीशु ने इसे पाप कहकर फटकारा. In fact, it's such a serious sin that in the book of Hebrews, we're told in Hebrews in chapter 3, we're given a warning in verse 12, "Take care, brethren," it's talking to believers, "lest there should be in any one of you, in you believers, there can be an evil, unbelieving heart." वास्तव में ये इतना गंभीर पाप है कि इब्रानियों 3 अध्याय वचन 12 में हमें चेतावनी दी गई है, हे भाइयों, सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम में से किसी में, तुम विश्वासियों में कोई दुष्ट अविश्वासी हृदय हो. What is an unbelieving heart called? अविश्वासी हृदय किसे कहते हैं? An evil, unbelieving एक heart. दुष्ट अविश्वासी हृदय. Now, an adulterous heart, we can understand it being called an evil, adulterous heart. अब व्यभिचारी हृदय के लिए हम समझ सकते हैं इसे दुष्ट व्यभिचारी हृदय कहा जा रहा है. Jesus spoke about an evil and adulterous generation.
in Matthew 16. प्रभु यीशु ने मत्ती 16 में एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी के बारे में बात की। A murderous heart, that we can say is an evil, murderous heart. एक हत्यारे का हृदय, हम कह सकते हैं एक दुष्ट हत्यारे का हृदय। Maybe even a selfish heart, we could, if we are a little more sensitive, we'd say a selfish heart is also an evil heart. शायद एक स्वार्थी हृदय के लिए भी हम यदि संवेदनशील है तो हम कह सकते हैं कि एक स्वार्थी हृदय भी एक दुष्ट हृदय होता है। Or a proud heart is an evil heart. Maybe we got that much light. Or a hypocritical heart is an evil heart. या एक घमंडी हृदय भी एक दुष्ट हृदय होता है। शायद अगर हमारे पास इतनी रोशनी हो तो हम कह सकते हैं कि एक पाखंडी हृदय भी एक दुष्ट हृदय होता है। Maybe we have that much light, or a heart full of hatred is an evil heart. पुनः यदि हमारे पास अधिक प्रकाश है तो घृणा से भरे हृदय को भी दुष्ट हृदय कहा जा सकता है। But how many people who have light on all these sins would also say that an unbelieving heart is an evil heart? And that's what it says here in Hebrews 3:12. परंतु कितने लोग हैं जिनके पास इन सभी पापों पर प्रकाश है, यह भी कहेंगे कि अविश्वासी हृदय दुष्ट हृदय है। परंतु यहाँ इब्रानियों 3:12 में बिल्कुल यही कहा गया है। In fact, it can make you fall away from the living God altogether. वास्तव में यह आपको जीवित परमेश्वर से पूरी तरह दूर कर सकता है। That's how serious it is. यह कितना गंभीर है। An unbelieving heart can make you fall away from the living God. एक अविश्वासी हृदय आपको जीवित परमेश्वर से दूर कर सकता है। And so we see this is another sin that we need to take seriously. 7 times Jesus rebuked his disciples for unbelief. और इसलिए हम देखते हैं कि यह एक और पाप है जिसे हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने 7 बार अपने शिष्यों को अविश्वास के लिए डांटा। Even after his resurrection, he was rebuking them only for unbelief. It's not that they had conquered all their other sins in their life. I'm sure they were defeated by hundreds of sins. All those disciples, they were still seeking who is to be the greatest and many, many things. But Jesus rebuked them for unbelief. जिसमें उनके पुनरुत्थान के बाद भी था, वह उन्हें केवल अविश्वास के लिए डांट रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में अन्य पापों पर विजय पा ली थी। मुझे यकीन है कि वे सैकड़ों पापों से हारे हुए थे। वे सभी शिष्य अभी भी यह खोज रहे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन होगा और ऐसी बहुत सी बातें, परंतु प्रभु यीशु ने उन्हें केवल अविश्वास के लिए डांटा। Now, unbelief is a sin because it is an insult to God. अब अविश्वास पाप है क्योंकि यह परमेश्वर का अपमान है। When God has said something and you don't believe it, it's an insult to God. Supposing you're a student in a college and your father sent you a letter saying, "Son, I put 1,000 rupees in your bank account for you to pay your fees." जब परमेश्वर ने कुछ कहा है और आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो यह परमेश्वर का अपमान है। मान लीजिए कि आप कॉलेज में छात्र हैं और आपके पिता ने आपको एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है, बेटा मैंने आपकी फीस भरने के लिए आपके बैंक खाते में 1,000 रुपए जमा कर दिए हैं। And you say, well, I'm not so sure whether dad really has put it. He may be bluffing me. लेकिन आप कहते हैं ठीक है, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि पिताजी ने वास्तव में इसे रखा है या नहीं, हो सकता है वो मुझे झांसा दे रहे हो। Don't you think that's an insult to your father? It certainly is. क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारे पिता का अपमान है? यह निश्चित रूप से है। How much more when God has said something and you don't believe it? इससे भी अधिक जब परमेश्वर ने कुछ कहा हो और तुम उस पर विश्वास नहीं करते। Either we must say, no, I don't believe the Bible is the word of God. Then you're okay. या तो हमें कहना होगा, नहीं मैं बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं मानता, तो फिर आप ठीक है। Then you're not insulting God because you don't know what God has said. तो फिर आप परमेश्वर का अपमान नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने क्या कहा है। Because supposing you're one of those people who believe that there is no book in the world which is the word of God. मान लीजिए कि आप उन लोगों में से एक हैं जो मानते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो परमेश्वर का वचन हो। There are people like that. They don't believe the Bible is the word of God. They believe the Bible is written by certain people who express their ideas. It's not God's word. ऐसे लोग हैं, वे यह नहीं मानते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और बाइबल कुछ ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई है जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। Well, such people are not insulting God because they don't have any
understanding of what God has said. ऐसे लोग परमेश्वर का अपमान नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात की कोई समझ नहीं है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। But you, who are a believer, on one hand you say the Bible is the word of God, and on the other you don't believe what God has written there. परंतु आप जो विश्वासी हैं, एक और तो कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, और दूसरी ओर आप उस पर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर ने उसमें कहा है। You're the one who's got a evil heart of unbelief that is insulting God by saying God said it, but I don't believe it. आप ही वह है जिसका अविश्वास का दुष्ट हृदय है, जो यह कहकर परमेश्वर का अपमान करता है कि परमेश्वर ने कहा है, परंतु मैं उस पर विश्वास नहीं करता। Do you believe that when God says, I will never leave you nor forsake you, Hebrews 13, verse 5 and 6, that He really means it, that He'll never fail you, never forsake you? क्या आप विश्वास करते हैं जब परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कभी तुम्हें त्यागूंगा, इब्रानियों 13:5 और 6? क्या आप विश्वास करते हो कि उनका वास्तव में यही मतलब है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही कभी हमें त्यागेंगे? Do you believe when it says in Romans 8 and verse 28 that every single thing that happens in your life, every single thing, big or small, God makes it all work together for your good? क्या आप विश्वास करते हैं जब रोमियो 8:28 में कहा गया है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, हर एक चीज चाहे बड़ी या छोटी, परमेश्वर उन सभी को आपकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम कराते हैं। All the evil that other people do to you, God will make it work together for your good. दूसरे लोग आपके साथ जितनी बुराई करते हैं, परमेश्वर इसे आपकी भलाई के लिए मिलकर काम करवाएंगे। You believe that? If you believed it, it would change your whole attitude towards your life. क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह आपके जीवन के प्रतीक आपका पूरा दृष्टिकोण बदल देगा। You wouldn't hate that man for doing something evil to you because that evil worked for your good. आप उस आदमी से नफरत नहीं करेंगे जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, क्योंकि वह बुराई आपके भले के लिए काम करती है। Everything depends on faith. If you have faith, you find that you can overcome many other sins. सब कुछ विश्वास पर निर्भर है। यदि आपके पास विश्वास है तो आप पाएंगे कि आप कई अन्य पापों पर विजय पा सकते हैं। The Bible says this is the victory that overcomes the world, even our faith. बाइबल कहती है यह वह विजय है जो संसार पर जय प्राप्त करती है, हमारा विश्वास। Why is it so many believers are afraid of the devil? ऐसा क्यों है कि इतने सारे विश्वासी शैतान से डरते हैं? I'll tell you. मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा कि It's not because the devil is powerful. क्यों। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि शैतान शक्तिशाली है। I know the devil is powerful. He's more powerful than any believer and any human being. मैं जानता हूँ कि शैतान शक्तिशाली है, वो किसी भी विश्वासी, किसी भी इंसान से अधिक शक्तिशाली है। It's because we don't have faith that he was defeated on Calvary's cross. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि वह कलवरी के क्रूस पर पराजित हुआ है। If we believe God's word that when Jesus died on the cross, he made powerless, Hebrews 2:14, he made Satan powerless. He didn't kill the devil. No. यदि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने शैतान को शक्तिहीन बना दिया, इब्रानियों 2:14, उन्होंने शैतान को मारा नहीं बल्कि शक्तिहीन बना दिया। The Bible is very exact. It says he's made powerless. That means he has no power over a child of God. बाइबल बहुत सटीक है। यहाँ कहा गया है कि उसने शैतान को शक्तिहीन बना दिया। इसका मतलब यह है कि उसके पास परमेश्वर की संतान पर कोई शक्ति नहीं है। Now, if you believe that, you'd never be afraid of the devil again. यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप फिर कभी शैतान से नहीं डरेंगे। You'd never be afraid of witchcraft. You'd never be afraid of anything. It all depends on faith. आपको जादू टोने से कभी डर नहीं लगेगा, आपको कभी किसी बात का डर नहीं होगा। यह सब विश्वास पर निर्भर करता है। See, faith and fear are opposites. देखिए, विश्वास और भय विपरीत है। You cannot have faith and fear living in the same heart. आप एक ही हृदय में विश्वास और भय नहीं रख सकते। You got to have one of the two. आप दोनों में से एक ले सकते हैं। When faith comes in, fear goes out. It's like light. जब विश्वास आता है तो डर निकल जाता है, यह प्रकाश की तरह है। When you put on the light, the darkness goes out of the room. जब आप प्रकाश करते हैं तो कमरे से अंधेरा बाहर चला जाता है। How can you have darkness and light coexisting anywhere? It's impossible. आप कहीं भी अंधकार और प्रकाश का
अस्तित्व कैसे रख सकते हैं? यह असंभव है। If you switch off the light, then the darkness takes over the room. यदि आप प्रकाश बंद कर देते हैं तो कमरे में अंधेरा छा जाता है। In the same way, for fear to come in, faith has to go out. इसी तरह डर को अंदर लाने के लिए विश्वास को बाहर जाना होगा। Why did the disciples get scared? शिष्य क्यों डर गए? They thought, hey, we're dying. The boat is drowning now. उन्होंने सोचा, अरे हम तो मर रहे हैं, नाव तो अब डूब रही है। And you may find yourself in situations where it looks as if you're really going to sink. And it looks as if Jesus is asleep. आप अपने आप को ऐसी स्थितियों में पा सकते हैं जहां ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच डूबने वाले हैं, और ऐसा लगता है जैसे प्रभु यीशु सो रहे And हैं। you wonder, Lord, don't you care? और आप आश्चर्य करते हैं, हे प्रभु, क्या आपको परवाह नहीं है? It's a question that can often come from the hearts of many people. यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कई लोगों के हृदय से आ सकता है। Lord, don't you care for us? परमेश्वर, क्या आपको हमारी परवाह नहीं है? Don't you understand what we're going through? क्या आप नहीं समझते कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं? I want to tell you, He certainly मैं does. आपको बताना चाहता हूँ, वह निश्चित रूप से परवाह करता है। In the book of Job, we read in Job chapter 23 and verse 10, it reads like this, He knows the way that I take, or He knows the way it is with me, like the margin says. अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वह जानता है कि मैं कैसा मार्ग अपनाता हूँ। अय्यूब 23:10। या वह जानता है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार होता है, जैसा कि कंस में कहा गया है। And the Living Bible paraphrase of it reads like this, इसलिए लिविंग बाइबल विवरण इस प्रकार है, God knows every detail of what is happening to me. परमेश्वर मेरे साथ क्या हो रहा है इसकी हर बात जानता है। He knows every detail of what is happening to me. वह मेरे साथ क्या हो रहा है इसकी हर बात जानता है। Do you believe that? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? Do you believe that all the little details of the problems you're facing in your life, God knows it? आपको विश्वास है कि आप अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी सभी छोटी छोटी बातों को जानता है। He certainly does. वह निश्चित रूप से जानता है। Jesus said in Matthew's Gospel chapter 10, he was trying to stir up faith in his own disciples. And he said, don't be afraid, he said in Matthew 10 verse 31, you are of more value than many sparrows, and not one sparrow falls to the ground anywhere on the earth without your Father knowing about it. प्रभु यीशु अपने शिष्यों में विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने मत्ती 10 में कहा, डरो मत। उन्होंने आगे कहा, तुम बहुत सी गौरैयों से अधिक मूल्यवान हो, और तुम्हारे पिता को पता चले बिना पृथ्वी पर कहीं भी एक गौरैया जमीन पर नहीं गिरती। मत्ती 10:31। And he also said, the very hairs on your head are all numbered. उन्होंने यह भी कहा, आपके सिर पर सभी बाल गिने हुए हैं। No human being can ever count the number of hairs on his head. कोई भी इंसान अपने सिर पर बालों की संख्या नहीं गिन सकता। That's impossible, even if he's got very little. यह असंभव है, भले ही उसके बाल बहुत कम हो। It's impossible to count the number of hairs on your head. आपके सिर पर बालों की संख्या गिनना असंभव है। And the Bible says that your heavenly Father knows the exact number of the hairs on your head. लेकिन बाइबल कहती है कि आपके स्वर्गीय पिता आपके सिर पर बालों की सही संख्या जानते हैं। And when you don't trust Him, He's insulted. That's why unbelief is such a terrible sin. जब आप उस पर विश्वास नहीं करते तो उनका अपमान होता है, इसलिए अविश्वास इतना भयानक पाप है। When you think God will harm you instead of care for you and protect you, that's an insult to God. जब आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी देखभाल करने और आपकी रक्षा करने के बजाय आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो यह परमेश्वर का अपमान है। Supposing you went to your little 4-year-old son's room in the middle of the night, say at 2 o'clock, to see if he was sleeping soundly, and he's sitting up in the bed scared. And you ask him, son, what's wrong with you? And he says, Daddy, I was afraid in the middle of the night you would come and kill me, or something like that. How would you feel as a father? मान लीजिए कि आप आधी रात को 2 बजे अपने छोटे 4 साल के बेटे के कमरे में गए, यह देखने के लिए कि वह गहरी नींद में सो रहा है या नहीं, लेकिन वह बिस्तर पर डरा हुआ बैठा है, और आप उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? और अगर वह जवाब दे, पिताजी मुझे डर था कि आधी रात को आप आएंगे और मुझे मार डालेंगे या ऐसा कुछ,
तो एक पिता के रूप में आप कैसा महसूस करेंगे? My son thinks I will harm him when he's asleep. मेरा बेटा सोचता है कि जब वो सो रहा होगा तो मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। How does God feel as a father when you think that he will harm you, that he won't protect you? एक पिता के रूप में परमेश्वर को कैसा महसूस होता है जब आप सोचते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, कि वो आपकी रक्षा नहीं करेंगे? Does that son have any fear? उस बेटे को ऐसा कोई डर है क्या? Unbelief is an insult to God. अविश्वास परमेश्वर का अपमान है। Faith honors God. विश्वास परमेश्वर का सम्मान है। The Bible says without faith it is impossible to please him. बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। Unbelief is a sin. Jesus came to save us from sin. अविश्वास पाप है। प्रभु यीशु हमें पाप से बचाने आए हैं। Let's remember these sins. From these sins come many other sins. आइए हम इन पापों को याद रखें। इन पापों से कई अन्य पाप आते हैं। Let's remember these 5: hypocrisy, pride, selfishness, hatred, and unbelief, and ask Jesus to save us from all 5. लेकिन आइए हम इन पांचों को याद रखें, पाखंड, घमंड, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास। प्रभु यीशु से आपको इन पांचों से बचाने के लिए कहें।